While the countrywide tally of coronavirus cases has more than doubled in less than 2 weeks, Planning and Development Minister Asad Umar on Sunday said the pandemic could also result in closure of up to 1 million institutions, rendering 18 million people jobless and pushing up to 70 million others below the poverty line in Pakistan, full stop. The federal minister was quoting the figures predicted by different organizations and think tanks, during a media briefing held at the National Command and Operation Center on COVID-19, full stop. New paragraph. The only option, for damage control, was to relax the restrictions slash lockdown, Mr. Umar said, adding that the government would decide the fate of the restrictions in a meeting of the National Coordination Committee on COVID-19 scheduled for May 9, full stop. The number of confirmed coronavirus cases has crossed 20,000 mark with 459 deaths recorded across the country, full stop. In the past 2 days only, the deadly virus claimed at least 55 lives, full stop. Nearly 24 deaths were being reported daily on an average, Mr. Umar said, adding that initially the daily average was 2 deaths, full stop. क्या सूरत हाल पैराग्राफ की बहन लिखा गया सर, मुकम्मल लिखा गया या मिसिंग होगी कोई? लिखा गया है। चलिए नेक्स्ट एक पैराग्राफ लिखें, उसके बाद सुनता हूं जरा मैं. However, the minister said, we are living in a region which is blessed for unknown reason, full stop. If we compare number of deaths in the first 46 days of the disease, after attaining 100 cases, 414 persons per million population died in Spain, 305 in Italy, 256 in France, 248 in the UK, and 106 persons per million population died in the US, full stop. In Pakistan, only 2 persons, and in India, only 1 person per million population died in the first 46 days after attaining the figure of 100 cases, he said, adding that the reason could be hot weather, BCG, vaccine or being located in malaria belt, full stop. New paragraph. At this average, around 720 people would die in a month across the country, where 4,800 people died in traffic accidents every month, but road traffic was not banned due to fatal accidents, Mr. Umar said to build his point that restrictions should be relaxed, full stop. The federal minister said that as compared to March, the revenue of Federal Board of Revenue was reduced by rupees 119 billion in April, full stop. With every passing day, problems were increasing and the government had been left with no option but to open businesses, he said, adding that even in the US, 30 million people had become jobless, full stop.
जी यही पैराग्राफ जो लास्ट में मैंने लिखवाया, ये बहादुर आप पढ़िएगा जरा इसको। एट दिस एवरेज से। जी सर। At this average, around 720 people would died in a month across the country, where अच्छा एक चीज 48 रखिएगा जरा, बात सुनिएगा जरा। वुड जहां भी आएगा ना उसके बाद वर्ब की पहली फॉर्म आएगी, यानी इसका मतलब ये होगा कि डाई आएगा, डाइड नहीं आएगा। वुड जहां भी आएगा, क्योंकि विल वुड वुड ऑलरेडी इसकी फॉर्म्स होती हैं, तो इसलिए वुड जब आएगा तो डाई फर्स्ट फॉर्म यूज की जाएगी। ठीक सर। would die in a month across the country, where 4,800 people died in traffic accidents, but road traffic was not banned due to fatal accidents. Mr. Umar said to build his point that restrictions should be relaxed. The federal minister said that as compared to March, the revenue of Federal Board of Revenue, Federal Board of Revenue was reduced by rupees 119 billion in April, full stop. With every passing days, problems were increasing and the government have been left with no option but to open businesses, he said, adding that even in the US, 30 million people had become jobless, full stop. हाँ, दूसरी एक चीज के ऊपर और गौर करना, जहां लफ्ज एवरी आ जाए वहां सीधा आपका सिंगुलर का आगे यूज होगा, जमा का नहीं यूज होगा। जैसा कि इधर लफ्ज आया था, ये विद एवरी पासिंग डे आएगा, डेज नहीं आएगा इसके ऊपर। यानी एवरी हर एक चीज के बारे में यूज होता है। तो जब एक चीज आएगी तो जाहिर आगे सीधा आपका जो भी होगा नाउन होगा वो सिंगुलर ही होगा। नेक्स्ट लिखिए जरा इसको। The minister said that every business could not be opened due to the fear that the health system might collapse, full stop. But we need to open business gradually to maintain a balance in a number of cases and economic activities, full stop. We have 5,000 intensive care beds, out of which 1,500 will be used for COVID-19 patients, and 23 of them are being used, full stop. We have 5,000 ventilators, of which 1,400 will be used for COVID-19 patients, and currently there are 35 patients on ventilators, full stop. Moreover, we will get another 900 ventilators in coming days, he said, full stop. The minister said, we had relaxed restrictions on April 14 and will again decide about further relaxing the restrictions on May 9, full stop. Moreover, we have testing capacity of 14,000, which can be doubled if we run machines on double shifts, full stop. On Saturday, we conducted over 9,000 tests and number of tests will be increased in coming days, full stop. काजम पढ़िए जरा इसको भाई। जी सर। The minister said that every business could not be opened due to fear that with the health system in might collapse, full stop. वही
we need to open business gradually to maintain a balance in number of cases and economic activities. Full stop. We have 5,000 intensive care beds, comma, out of which 1,500 will be used for COVID-19 patients and 23 of them are being used. Full stop. We have 5,000 ventilators, comma, of which 1,400 will be used for COVID-19 patients and currently there are 35 patients on ventilators. Full stop. Moreover, comma, we will get another 900 ventilators in coming days, comma, he said. Full stop. The minister said, colon, we had relaxed restriction on April 14 and will again decide about further relaxing the restriction on May 9. Moreover, we have testing capacity of 14,000 and which could be doubled if we run machines on double shift. Full stop. On tests and number of tests will be increased in coming days. Full stop. चलो नेक्स्ट लिखिए मिस्टर उमर has said a number of European countries, comma, despite 20,000 deaths in each one of them, comma, had decided to relax the lockdown. Full stop. We also need to do the same as people have started asking that what will happen if disease is not controlled at all. Full stop. According to a Gallup survey, comma, Pakistanis are being affected the most due to unemployment. Full stop. We need to increase job opportunities and ensure that the health system does not collapse, comma, he said. Full stop. ये पढ़ेंगे अपना फुरकान, जरा पढ़िए छोटा सा पैरा ये वाला. Mr. Yusuf said a number of European countries, despite 20,000 deaths in each one of them, had decided to relaxing lockdown. Full stop. We also needed to do the same as people have started asking. Asking that what will happen this disease is not controlled it all. Full stop. According to survey, Pakistanis which being affected the most due to unemployment. Full stop. We need to increase job opportunity and ensure that the health system does not collapse, comma, he said. Full stop. कोलैप्स के स्पेलिंग क्या होते हैं? COLLAPSE. COLLAPSE. कोलैप्स तबाह हो जाना, ढेर हो जाना. अच्छा, इसके बाद मुझे स्पेलिंग बताएंगे यूरोपियन के स्पेलिंग क्या होते हैं? EUROPEAN. हाँ, चलो नेक्स्ट लिखें जरा. The Punjab government has ratified the allotment of up to 25 acres of state land, comma, which was meant for the families of the martyred soldiers and war veterans under the Army Welfare Scheme, comma, to 47 civilian government officials. Full stop. The allotment had been made without legal sanction on the orders of former dictator General Pervez Musharraf in contravention of the merit and law, comma, two persons in CM Secretariat confirmed on condition of anonymity. Full stop. अमार भट्टी पढ़िए जरा इसको. The Punjab government has ratified the allotment of up to 25 acres of state lands, comma, which was meant for the families of the martyred soldiers and war band. ये लफ्ज क्या सर? मल्टेड के बाद आ गया क्या आपका? आ गया and war veterans. Martyred soldiers and war veterans. Veterans under the Army Welfare Scheme, comma, to 47 million government officials. Full stop. The allotment had been made without legal sanctions on the orders of former dictator General Pervez Musharraf in contravention of the merit and law, comma, two persons in
CM Secretariat confirmed on condition of anonymity, full stop. वेटरन की स्ट्रोक ये भी है, वी टी आर सीरीज और एन के हुक भी लगा सकते हैं, वी को डबल करके भी एन के हुक लग सकती है वेटरन, लेकिन ये गलती हो सकती है, कुछ और भी पढ़ा जा सकता है, बेहतर है वी डाल के टी आर सीरीज और एन। वेटरन कहते हैं किसको को? आला को कहते हैं, पुख्ता को कहते हैं। सर वो वाइट पेपर आज शो नहीं हो रहा। अच्छा शो नहीं हो रहा, तो मैं कर देता हूँ शो भी, जरा इसको भूल गया मैं, याद भूल गया मुझे, इसको मैं कर ही दूं पहले ना। ये आज क्यों नहीं शो होगा अभी तक? अच्छा इसके स्पेलिंग समझ में आ गया वैसे वेटरन के क्या स्पेलिंग है? यस सर। क्या बताया मैंने स्पेलिंग अभी वेटरन के? VETERAN। मैं व्हाइट बोर्ड भी लेके आ रहा हूँ सामने आपके, ये आ गया व्हाइट बोर्ड आपका, ये देखिए जरा। ये देखिए मैंने लिख दिया लफ्ज, अभी अभी लिखा आपके सामने, VETERAN वेटरन, ये वाला लफ्ज था। आला, पुख्ता या मुंजा हुआ आदमी होता है, जो सख्त होता है, हर लिहाज से तजर्बेकार जो आदमी होता है उसको कहते हैं वेटरन। वेटरन वर्कर मोमन लफ्ज यूज होता है इसके अंदर। तो नेक्स्ट लिखिए जरा भाई। According to the sources in the Punjab CM Secretariat, the Pakistan Muslim League Nawaz government had cancelled the allotment, which had been ordered by the former military dictator during January 2004 and May 2008 in alleged violation of the Colonization of Government Land Act 1912 and the allotment policy framed in 1962 under it for the AWS full stop. After the cancellation order, the PMLN government also rejected multiple summaries put up to former Chief Minister Shahbaz Sharif for ratification, full stop. ये पढ़ेंगे अपना, रिजवान पढ़िए जरा इसको भाई। Yes, sir. According to sources in the Punjab CM Secretariat, the PMLN government had cancelled the allotment, which had been ordered by the former military dictator during June 14 in in alleged violation of Colonization of Government Land Act 1912 and the allotment policy framed in 1962 under it for the AWS full stop. After the cancellation order of the PMLN government also rejected multiple summaries put up to former Chief Minister Shahbaz Sharif for ratification, full stop. Ratification के स्पेलिंग क्या है भाई? RATIFICATION। RATIFICATION लिख रहा हूँ मैं ये। रेटिफिकेशन एक होता है रेक्टिफिकेशन, RECTI रेक्टिफिकेशन, ये लिख रहा हूँ रेक्टिफिकेशन और रेटिफिकेशन। ये लफ्ज इधर आया था आपका रेटिफिकेशन आया था गालबन, ये मैंने गलत वाला लफ्ज गलत लिख दिया है। रेटिफिकेशन RATIFAICATION रेटिफिकेशन। अब इनके अंदर फर्क क्या है? स्पेलिंग के अंदर मैंने क्लियर कर दिया आपको, रेटिफिकेशन और रेक्टिफिकेशन। रेटिफिकेशन कहते हैं तौसीक को, तौसीक यानी किसी चीज की तायीद या तौसीक इसको बोलते हैं, और रेक्टिफिकेशन कहते हैं दुरुस्तगी को। यानी रेटिफाई का मतलब तौहीद करना या तौसीक करना, और रेक्टिफाई का मतलब दुरुस्त करना होता है।
अब स्ट्रोकिंग किस तरह डालेंगे इनके, अगर तो रेटिफिकेशन है, आर को अपवर्ड हाफ करके एफ के साथ शन लगाएंगे, नीचे वाला डिप्थोंग भी लगा लें ताकि इजीली पड़ी जाए स्ट्रोक। और रेक्टिफिकेशन अगर आएगा तो आर अपवर्ड के हाफ फिर एफ और शन लगाएंगे रेक्टिफिकेशन के। समझ आ गई ना? जी सर। जी, इसके अलावा कोई लफ्ज पूछना हो आपने? एक लफ्ज कॉलोनाइजेशन भी आया था, कॉलोनाइजेशन, COLONISATION, कॉलोनाइजेशन, कॉलोनी से लफ्ज है कॉलोनाइजेशन, आबादकारी रैश के अंदर ये लफ्ज यूज किया जाता है। स्ट्रोक किस डालनी थी, KL सीरीज N और जी शन की मरोड़ी दे देंगे कॉलोनाइजेशन के लिए। जी नेक्स्ट लिखिए जरा, द मिलिट्री वाज ऑफ द ओपिनियन दैट द अलॉटमेंट्स made to the civil officials may be treated as closed chapter and offered to work out allotment modalities for future in consultation with the provincial government and the provincial board of revenue, full stop. However, Mr. Sharif did not oblige, full stop. New paragraph, the sources in CM Secretariat said around 837 acres of the AWS land had been allotted to civil officials without consulting the provincial government, full stop. The land had been allotted in districts of Bahawalpur, Pakpatan, Khanewal, Saiwal, Muzaffargarh, Bahawal Nagar, Rahim Yar Khan, full stop. The former CM rejected another summary prepared by the Board of Revenue in February 2012, as the then Punjab Chief Secretary noted that it didn't augur well for the civil service and the overall good governance, full stop, according to the fresh summary approved by the Usman Buzdar government to restore and validate the allotments, the Sharif government had cancelled the allotments and retrieved the allotted land from the beneficiary officials in 2010, because the land was actually allotted to the military for a specific purpose under the law, full stop. ये पढ़ेंगे अपना मुदस्सर पढ़िए जरा इसको। जी सर। The military was of the opinion that the allotments made to the civil official may be treated as closed and offered to work out allotment modalities for future for consultation that the provincial government and the provincial bar of the revenue board of revenue however, Mr. Sharif didn't fresh new paragraph. The sources in CM Secretariat said land 87 of AWS land had been allotted civil official them consulting civilian officials, them consulting a provincial government. The land had been allotted in district of Bahawalpur, Pakpatan, Khanewal, Saiwal, Muzaffargarh, Bahawal Nagar, Rahim Yar Khan, full stop. The former CM rejected an other summary prepared by the Board of Revenue and in February 2012 as the Punjab Chief Secretary, while for the civil services and good governance, full stop, according to the provincial fresh summary approved Usman Buzdar government to restore and validated the allotments. The Sharif government had cancelled the allotments and retrieved the land from the beneficiaries in 2010 because the land was actually allotted to the military for a specific purpose
under the law, full stop. स्पेसिफिक के स्पेलिंग क्या है? SPACIFIC. SPECIFIC, स्पेसिफिक, खास या मखसूस। और स्ट्रोक किस तरह डालते हैं आप? बड़ी करके तो नहीं डालते, एस सर्कल फिर पी फिर P S सर्कल F के साथ फिर K. एफ फिर के, इस तरह तो नहीं डाल रहे कहीं पे? जी सर जी. करके डालेंगे, एफ निकाल देना है, स्पेसिफिक, सीधी सीधी स्ट्रोक। तो स्पेसिफिकेशन अगर आ जाए तो फिर हम उस तरह डालेंगे स्ट्रोक, एस सर्कल पी एस सर्कल एफ और शन। स्पेसिफिकेशन के लिए ये ठीक होगी स्ट्रोक। बेनिफिशियरी के स्पेलिंग क्या होंगे? BENEFICIARIES. CIARY, बेनिफिशियरी। किसको बोलते हैं बेनिफिशियरी? मफादात. मैं लिख रहा हूँ बेनिफिशियरी, FICIARY। बेनिफिशियरी की स्ट्रोक किस तरह डालनी है? BN के ऊपर लगा के F को डबल कर देना है बेनिफिशियरी के लिए। इस्तिफादा हासिल करना, मुस्तफीद होने वाले शख्स को बेनिफिशियरी बोलते हैं। और बेनिफिशियल फायदा हासिल करने को कहते हैं। अगर बेनिफिशियल की स्ट्रोक डालनी होगी BENEFICIAL, बी के साथ ही इशल ऊपर ले जाएं, या ज्यादा अच्छी करके डालनी है क्लियर करके तो एन भी डाल के इशल ऊपर ले जाएं, बेनिफिशियल। अगर बेनिफिशियल ऑनर आ जाता है तो फिर ऑनर को भी नीचे NR को भी लिख देंगे, बेनिफिशियल ऑनर। इसके बाद मुझे स्पेलिंग बताएंगे आप सेक्रेटेरिएट के स्पेलिंग क्या थे? SECRETARIAT. अच्छा, कंसल्टिंग के स्पेलिंग मीनिंग क्या होंगे? कंसल्टिंग CONSULTING. समझना. कंसल्ट कहते हैं मशावरत करना, मशवरा देना. कंसल्टेशन मशावरत को कहते हैं, तो मशवरा करने को कहते हैं कंसल्ट। कंसल्टेंट किसको कहते हैं? मुशीर को, मशवरे को. मुशीर मशवरा देने वाले को या मशवरा करने वाले को कहते हैं, क्या बोलते हैं? कंसल्टेंट। अलॉटेड के स्पेलिंग क्या होंगे? ALLOTTED. हाँ, ALLOTTED, अलॉटेड। बाद मुझे बताएंगे आप स्पेलिंग जो है वैलिडेट के। वैलिडेट VALIDATE. क्या होता है वैलिडेट? सर वो क्या, वैलिडेट कहते हैं दुरुस्त को, जायज या दुरुस्त। वैलिड, इनवैलिडेट गलत को कहते हैं, नजायज को कहते हैं इनवैलिडेट। रिट्राइव्ड के स्पेलिंग क्या होंगे? RETRIVIED. पहले अपना स्ट्रोक किस तरह डाली है इसकी? R अपवर्ड TR सीरीज और V डाल दो। किसी वाला तरह बना दिया ये वाले? मैंने V पूरा यूज किया। नहीं, V पूरा क्यों लिख रहे हैं? RTR सीरीज हाफ करके V के ऊपर लगानी, रिट्राइव्ड। आगे लिखिए जरा, those who had sold the land allotted to them were told by the Sharif administration to deposit the sale proceeds to the provincial treasury, full stop. The provincial officials who had benefited from the GHQ's decision were suspended, while the matter of the 3 DMG officers who got the land was sent to the establishment division, full stop. Apparently, the establishment division did not take any action against them, full stop. The prominent beneficiaries include DMG officers Sardar Ahmad Nawaz, the Federal Cabinet Division, Dr. Faisal Zahoor and Sayyid Imtiaz Hussain Shah, full stop, ex-PCS officials who will benefit from the government decision include Muhammad Zahid Ikram, etc., full stop. The remaining officials mostly included district revenue officials, full stop. नवाज भट्टी पढ़िए जरा इसको। Those who had sold the land allotted to them was told by the Sharif administration to deposit the sale proceedings to the provisional treasury, full stop. The provisional officials who had benefited from the GHQ decision were suspending, while the matter of the
DMG full stop. Officers who got the land was sent to the establishment division full stop. Apparently, the establishment division did not take any action against them full stop. The prominent beneficiary include Dr. Muhammad as a officer, the Federal Cabinet Division, Dr. Zafar, and full stop ex officials who will benefit from the government decision include extra full stop. The remaining officials mostly included district revenue official full stop. अच्छा यार नवाज ना छोटी छोटी यार गलतियां हैं, मुझे ना डर है कि मसला खराब ना हो जाए। हम ये समझते रहे हैं कि ये जल्दी पढ़ लेता है, ये सही पूरा पिक कर लेता है, छोटी छोटी कॉमन गलतियां काफी सारी आ जाती हैं जो मैं प्रॉब्लम करेंगे यार। जी यानी सर। किसी जगह पे आपने डी ना लगाया, किसी जगह पे इंग ना लगाया, किसी जगह पे इंग वैसे ही लग गया, इस तरह की किसी जगह पे छोटी छोटी और गलतियां कुछ हो गई। तो यानी इनकी तरफ हमने फोकस करना है कि ये गलतियां रुक जाएं किसी तरीके से ना। बेहतर सर। हाँ, तो नेक्स्ट अच्छा मुझे ना स्पेलिंग कुछ बता दें इसके अंदर प्रोमिनेंट के। PROMINENT। क्या होता है प्रोमिनेंट? PROMINENT। प्राइम लिख लिया आपने? प्राइम एन के ऊपर आके एन को आपका नुमाया, क्या मतलब इसका है? वाज़िया नुमाया। वाज़िया या नुमाया। अच्छा मुझे स्पेलिंग बताएंगे आप इसके अंदर डिसीजन के स्पेलिंग क्या होते हैं? DECISION फैसला। कैंसलेशन के स्पेलिंग क्या होंगे? CANCELLATION। अच्छा तो बेनिफिटेड के स्पेलिंग? BENEFITED। ये ना एक लफ्ज ये है बेनिफिटेड, मुझे तो बहुत अच्छी तरह याद है, आपको भी याद हो जाना चाहिए वैसे। इसके अंदर डबल टी नहीं आता, ये बेनिफिटेड के अंदर सिंगल टी आएगा, ये याद रखना है क्योंकि मैंने इसके अंदर जुर्माना भी एक आदमी को किया हुआ था, इस वजह से ये भूलता नहीं किसी को भी। मौजम को किया था BENEFITED। अगर आ जाए बी फिटेड फिर डबल TED आएगा। तो यानी बेनिफिटेड के अंदर सिंगल टी और बी फिटेड के अंदर डबल टी। बेनिफिट का मतलब क्या होता है? फायदा देना। बी फिट का मतलब क्या होता है? मुनासिब होना। बी फिट रिस्पॉन्स, मुनासिब जवाब देना। तो नेक्स्ट लिखिए जरा भाई। Later in November 2019, the DG lands at GHQ wrote to the Pakistan Tehreek-e-Insaf government led by Mr. Buzdar for restoration of the allotments, stating that all the orders of President/Chief Executive of Pakistan were subsequently given constitutional protection and also upheld by the Supreme Court of Pakistan in the Tikka Iqbal case, full stop. Strangely enough, the DG lands did not mention that the said judgment was overturned by a 14-member bench in July 2009 in the PCO judge's case, full stop. 2 days after the receipt of the DG lands letter, the BOR member initiated a fresh summary for the Punjab CM, requesting Mr. Buzdar to take an explicit decision whether to withdraw the order cancelling the impugned allotments, full stop. The Chief Minister referred the matter to the Standing Committee of the Cabinet on Legislative Business that in February endorsed the viewpoint of the DG lands, GHQ, full stop. हाँ जी फैसल महमूद पढ़िए जरा इसको। Later in November 2019, the DG lands had HQ the road to the Pakistan Muslim League Nawaz government led by Mr. Buzdar for restoration of the allotments, stating that all the orders of
President slash Chief Executive of Pakistan were subsequently given constitutional protection and also upheld by the Supreme Court of Pakistan in the Iqbal case. Full stop. Strangely, NF HQ land did not mention that the said statement was overturned by a 40 member bench in July for the in the Pakistan case. Full stop. 2 days after the restrict of the DG lands letter, the BOR member initiated for the Punjab CM, to take a capacity decision whether to withdraw the order cancelling the mute allotments. The chief minister recorded the matter to the standing committee of the cabinet on legislative business that the in February endorsed few DG land HQ. अच्छा, व्यू पॉइंट के स्पेलिंग क्या होते हैं? VIEWPOINT point. किसको कहते हैं? What नुक्ता नजर किसको कहते हैं? नुक्ता नजर. नुक्ता नजर। एक लफ्ज एक्सप्लिसिट है इसके अंदर, उसके स्पेलिंग मीनिंग क्या थे? EXPILLICITY. क्या होता है ये? मीनिंग कितने पर? ये मैंने लिख दिया स्क्रीन के ऊपर, गौर कीजिए जरा। एक्सप्लिसिट की स्टोक भी मैंने बना दिया है और इसका मीनिंग भी लिख दिया। वाज़िया इसका मतलब होता है एक्सप्लिसिट, वाज़िया, क्लियर, साफ को कहते हैं एक्सप्लिसिट। इनिशिएटेड के स्पेलिंग क्या होंगे? INITIATED. क्या होता है ये? आगाज करना। इनिशिएट क्या होता है? आगाज करना, आगाज करना, शुरुआत करना, इनिशिएट। अगर इनिशिएटेड है तो स्ट्रोक किस तरह डालेंगे? एन इश हाफ, पूरा टी को हाफ कर देंगे। दूसरी स्ट्रोक ये भी डाली जा सकती है इसकी, एन के बाद इश को हाफ करके इनिशिएट को कट कर देंगे, इनिशिएटेड बन जाएगा। एंडोर्स के स्पेलिंग क्या होंगे? ENDORSED. एंडोर्स्ड। क्या होता है ये? मंजूरी। एंडोर्स की क्या मतलब होता है? भेजना, आगे भेजना या मंजूरी देना, एंडोर्स। कैंसलिंग के स्पेलिंग क्या होंगे? CANCELLING. इम्प्यून्ड के स्पेलिंग क्या होंगे? IMMUNT. IMPUGNED, इम्प्यून्ड, मुतनाज़ा इसका मतलब होता है। और स्ट्रोक किसे डालेंगे? मैं लिख देता हूँ स्ट्रोक भी, मुतनाज़ा। अंडर द लाइन एम मोटा डाल देंगे, एन के ऊपर लगा देंगे, इम्प्यून्ड बन जाएगा। कट भी कर देना साथ इसको इम्प्यून्ड के लिए। अगर आ जाए इम्प्यून्ड जजमेंट, यार देख लिया इसको भी जरा। अगर इम्प्यून्ड जजमेंट आ जाएगा तो फिर आपने इम्प्यून्ड के साथ ही जे को ज्वाइन कर देना, अंडर द लाइन। बल्कि अगर आ जाए इम्प्यून्ड डॉक्यूमेंट तो फिर आपने इसी एम मोटा एन के साथ डी का इस्तेमाल करना है इम्प्यून्ड डॉक्यूमेंट्स के लिए। तो अमूमन लफ्ज ये यूज होते हैं, इम्प्यून्ड डॉक्यूमेंट या इम्प्यून्ड जजमेंट। मुतनाज़ा फैसला या मुतनाज़ा डॉक्यूमेंट्स या मुतनाज़ा लैंड भी आ सकता है, इसके इम्प्यून्ड लैंड भी यूज किया जा सकता है। तो यानी मतलब इसका जो होता है मुतनाज़ा के अंदर यूज होता है। नेक्स्ट लिखेंगे जरा, द चीफ मिनिस्टर लेटर अप्रूव्ड द अलॉटमेंट्स एज रिकमेंडेड बाय द स्टैंडिंग कमेटी सब्जेक्ट टू रैटिफिकेशन बाय द कैबिनेट गिवन लास्ट वीक। Neither Punjab Information Minister Fayazul Hassan Chauhan nor Principal Secretary to Chief Minister Iftihar Sahu responded to Dawn queries and repeated texts and calls in this regard during the last 3 days. The only time Mr. Chauhan replied was when
He texted back and sought the questions in writing, comma, but never revolted back. Full stop. The questions sent to the minister were if the provincial government slash cabinet had validated the allotment of AWS land to the 47 civil officials in its meeting on Thursday, question mark. ये मुझे पढ़ के सुनाएंगे। हसी पढ़ो जरा इसको। The chief minister later approved the allotments is recommended by the standing committee, subject to the ratification by the cabinet. Given last week of staff, neither Punjab information minister Fyadul Hassan Chauhan nor principal secretary to Chief Minister Ishaq Sahu responded to didn't queries and repeated taxes and called in this regard during the last 3 days. Full stop. On the only time Mr. Chauhan replied was when he texted back and sought the question in Allah सही लफ्ज क्या है? ये क्या आ गया इधर? क्वेश्चन कहाँ पे आ गया? ये क्वेश्चन टू द मिनिस्टर to never retrieve the back the question sent to the minister where if the provincial government slash cabinet had validated the allotment of AWS run to the 47 civil official in meeting on Thursday. Full stop. अच्छा, एक दो ना एक लफ्ज आपने टेक्स्ट बोला था, रिपीटेड टेक्स्ट एंड कॉल्स, यानी मैसेजेस और कॉल की बात हो रही है, टेक्स्ट एंड कॉल्स। उसके बाद लफ्ज इन दिस रिगार्ड है, इसका फ्रेज किया था आपने? यस सर। इन दिस के साथ गे को आप किया सर यार आप वर्ड ले गए इन दिस रिगार्ड। यार ये देखें जरा, इन दिस रिगार्ड और इन दैट रिगार्ड। इन दिस रिगार्ड और इन दैट रिगार्ड। इन दिस के साथ ही गया आप करते हैं, आप आर अपवर्ड ले जाके ऊपर गया आप किया। सर केला आ रही अपवर्ड ले गए हूं यार देखिए ना जरा, बहुत ने स्ट्रोक वो डालनी है जो गलती ना करे। इन दिस आपने इस तरह डाला होगा इन दिस रिगार्ड को, अगर ये डाली स्ट्रोक भी ठीक है। अगर इन केला ही डाल के इन दिस ये आप कर देते हैं दिस रिगार्ड, अगर इन दैट रिगार्ड आ जाए इन दैट, फिर इसी के साथ ये आप कर देना इन दैट रिगार्ड। ठीक, इन दैट रिगार्ड तो मतलब इस लिहाज से या उस लिहाज से, इन दिस रिगार्ड इस लिहाज से, इन दैट रिगार्ड उस लिहाज से। अच्छा, प्रिंसिपल जो सेक्रेटरी आया था, ये प्रिंसिपल के स्पेलिंग क्या थे? PRINCIPALSECRETAR प्रिंसिपल सेक्रेटरी। रेटिफिकेशन के स्पेलिंग है रेटिफिकेशन RATIFICATI। मैंने पहले भी ये लफ्ज आपको बता चुका हूँ, पहले भी लिख के दे चुका हूँ। RATIFICATI तौसीक वाला, ताईद वाला जो है। अच्छा, रिपीटेड के स्पेलिंग क्या होंगे? REPEATED। चले ठीक हो गया, नेक्स्ट लिखें जरा। At the peak of wheat harvesting season, the supply chain of major petroleum products, particularly high-speed diesel, has been seriously affected in many parts of the country, as oil marketing companies allegedly played tricks for monetary gains on the basis of increase in tax rates on petroleum products as approved by the government on April 30, full stop. Sources said on Sunday.
that some parts of Khyber Pakhtunkhwa, Azad Kashmir, northern parts of the country and some areas in Punjab and Sindh faced shortages at petrol stations on the first 3 days of May as sales pressure increased due to reduction in oil prices, relaxation in lockdown measures, and higher demand in the agriculture sector for full stop. ये मुझे पढ़ के सुनाएंगे पैराग्राफ। अलीशान पढ़ो जरा इसको। Product particularly start speed diesel as Punjab serious affected in many of the countries of oil marketing companies allegedly strict for monitoring gain of increase in tax rate of petroleum rate product as proved by government on particularly is serious is source that said on Sunday that some part of Khyber Pakhtunkhwa and Kashmir, Azad Kashmir, northern part of the country, and some areas in Punjab and Sindh faced a shortage at petroleum situation on the first 3 years. For the first 3 years, therefore, increased due to reduction in oil prices, relaxation in lockdown measures, and higher demand in the agriculture sector. For अच्छा, पेट्रोलियम के स्पेलिंग क्या होते हैं? PETROLIUM आई नहीं आएगा, PETROLEUM पेट्रोलियम। कल मैंने इसकी स्टोक बना के दी थी ना आपको, पेट्रोलियम की पी को डबल करके एम को सिर्फ जो है पेट्रोलियम, और पहले मैं फिर लिख रहा हूँ PETROLEUM पेट्रोलियम। अच्छा, मुझे स्पेलिंग बताएंगे allegedly के? EALLEGDLY GEDLY क्या होता है allegedly? मुबैना तौर पर KLLEGEDLY, L J हाफ करके L अपवर्ड यूज करेंगे allegedly के लिए, मुबैना तौर पर। मुबैना तौर पर क्या होता है? जानबूझकर। यस। चलो नेक्स्ट लिखिए जरा। The petroleum was compounded by low stocks kept by the OMCs at retail outlets in view of the imminent price reduction for May and leak of information from official channels that the government planned to increase the petroleum levy, according to the sources full stop. Officials from the Directorate General of Oil and Petroleum Division also reportedly tinkered with the schedule of import orders and favored their favorite companies in allowing appropriate berthing of vessels. Full stop. अच्छा, ये ना मुझे पढ़ के सुनाएंगे अपना फुरकान, पढ़ें जरा इसको। The petroleum was compounded by a low stocks kept by the OMCs at outlets in view of the retail in view of the imminent members reductions for made and week of information from official channels that the government planned to increase petroleum, according to the sources from full stop official from the
Directorate General of Oil and Petroleum Division also reportedly tinkled that the schedule of import orders ciphers their favorite companies in allowing appropriate worth of vessel. अच्छा, इसके अंदर एक लफ्ज टिंकर्ड आया था, उसकी स्ट्रोक में बना देता हूँ आपको। नया कोई लफ्ज है टिंकर्ड, क्या है ये? TINKER, टिंकर से टिंकर्ड है ये। TNKR से इसको हाफ कर देंगे, लफ्ज कोई जरूरी नहीं है ये इसकी स्ट्रोक भी बनानी जो है, लेकिन मैं बना दी स्ट्रोक टिंकर्ड। फेवर्ड जो आया था उसके स्पेलिंग क्या थे? FAVOURED। फेवरेट के स्पेलिंग क्या है? FAVORTE। FAVOURITE, फेवरेट। क्या स्पेलिंग है? FAVOURITY, फेवरेट। इसको किस तरह डालेंगे? F VR सीरीज डाल के T डाल दें, F को डबल करके T डाल दें, ये ठीक है फेवरेट की स्पेलिंग। तो चैनल के स्पेलिंग क्या होंगे? CHALLEL। अच्छा, इमिनेंट के स्पेलिंग क्या होंगे? IMMINENT। क्या होता है इमिनेंट? नुमाया। IMMINENT, इमिनेंट, NENT, इमिनेंट, नुमाया। और स्टोक उसी तरह M, N की होकर N हाफ करेंगे, इमिनेंट। शेड्यूल के स्पेलिंग या स्केड्यूल के स्पेलिंग क्या होते हैं? SCHEDULE। कंपाउंडेड लफ्ज आया था, उसके स्पेलिंग क्या होते हैं? COMPOUNDED। क्या होता है कंपाउंडेड? नहीं पता। जोड़ना, किसी के साथ मुरक्कब करना। कंपाउंड का मतलब क्या होता है? किसी को मुरक्कब कर देना, एक आंसर के साथ दूसरा जोड़ देना या उसमें हल कर देना, कंपाउंड हो जाता है वो। तो आउटलेट्स के स्पेलिंग क्या होंगे? OUTLETS। क्या होता है आउटलेट्स? किसी चीज का बाहर निकलना, खराज करना आउटलेट्स होता है। बाहर निकलना, खारिज क्यों कहते हैं? आउटलेट। तो एब अनिशो, काजम बताइए जरा भाई। एब INITIO, एब अनिशो इब्तदाई से ये शुरू। अबेंडन, ABANDON, अबेंडन, छोड़ देना, तर्क कर देना। एबेटवायर, ABATTOIR, एबेटायर, ज़िबा खाना या बोचर खाना। अच्छा, एबडक्टर, ABDUCTO और अबडक्टर, अगवाकार। अबैटर, ABTTO और अबैटर, मुजरम का मुआवन। आगे मुझे बताएंगे अपना बहादुर, आप जरा बताइएगा एबहोरेंस के स्पेलिंग मीनिंग क्या होंगे? बहादुर जी सर। हाँ जी। ABHORRENCE, हकारत। हकारत ठीक है, कराहत भी ठीक है। और स्टोक किस तरह डालेंगे एबहोरेंस की? ये देखिए जरा, एब H अपवर्ड और नीचे सर्कल लगा देंगे तब भी ठीक है। अगर B H अपवर्ड नीचे N और सर्कल लगा देंगे तब भी ठीक है एबहोरेंस। जी सर। आगे बताइएगा जरा मुझे एबॉलिश की स्पेलिंग मीनिंग क्या होंगे? ABOLISH, खत्म करना, मनसूख। अच्छा, एब्रोगेट, ABROGATE, तर्क करना। जी इसका मतलब भी सेम ही है, मनसूख करना, तर्क करना, निकाल देना भी इसका मतलब होता है, बल्कि फाड़ देना भी इसका मतलब होता है एब्रोगेट का। लेकिन ज्यादा लफ्ज खत्म करने क्या था? एब्रोगेट ऑफ लॉ, कानून का खत्म कर देना, निकाल देना। एब्रप्ट, ABRUPT, अचानक। ठीक हो गया। उसके बाद आप बताएंगे एब्सकंडर के। ABSCONDER, मफरूर। एब्सॉल्व, ABSOLVE, बरी करना सर। ठीक हो गया। उसके बाद बताएंगे अबंडेंट। ABUNDANT, ज्यादा, कसीर।
आगे बताएंगे मुझे एक्सीड टू का मतलब क्या होगा, स्पेलिंग क्या होंगे? ACCEDE तस्लीम करना सर, कबूल कबूल करना। करना या तस्लीम करना, ठीक है। एक्सीलरेट, ACCELERATE तेज करना, बढ़ाना। उसके बाद बताएंगे मुझे एक्सेप्टेंस, ACCEPTANCE मंजूरी। एक्सेसिबिलिटी, एक्सेस, ACCESSIBILITY रसाई। अच्छा। उसके बाद बताएंगे एक्लेम, ACCLAIM खुशी सर। खुश होना या खुशी में तालियां बजाना, खुश आमदीद कहना वगैरह, इसके मतलब है एक्लेम। जी सर। अकोमोडेशन, ACCOMMODATION अकोमोडेशन रहाय सर। कंप्लाइस या कॉम्प्लिस, ACCOMPLICE जुर्म में साथ देना सर। साथी को कहेंगे, जुर्म का जो साथी हो जिसको हम को अक्यूज्ड बोलते हैं, वही है जी कॉम्प्लिस। सर। जी सर। आगे बताएंगे एक्रूड, ACCRUED हासिल करना। अच्छा चलें ठीक होगा। आगे मुझे बताएंगे स्पेलिंग एक्वेंटेंस के फैसल महमूद। किसके सर? एक्वेंटेंस नहीं, AQUAINTANCE। ठीक कर लें स्पेलिंग जरा, ACQUAINTANCE। एक्वेंटेंस वाकफियत, जान पहचान। वाकफियत, जान पहचान। एक्यूटल के बता दें। ACQUITTAL टोटल बरी। बरी। आगे मुझे बताएंगे अडाप्टेशन, ADAPTAION मुनासबत। मुनासिब। मैं जरा क्लियर कर दूं, शायद पहले भी किया होगा, मैं दोबारा कर देता हूँ। एक होता है लफ्ज अडॉप्ट, ADOPT। एक होता है अडॉप्ट, ADAPT। अडॉप्ट का मतलब होता है इख्तियार करना। अडॉप्ट का मतलब होता है किसी चीज की तरह कर देना, वैसे कर देना, उसको हम क्या कहें, मुनासिब करना या वैसे कर देना, मुताबिक करना। मुताबिक करना लिख दें, मुताबिक। अडाप्टेशन होगा तो मुताबिकत होगा। तो यानी एक चीज की तरह दूसरी चीज को बना देना क्या होगा, अडॉप्ट। और अडॉप्ट का मतलब क्या होगा, किसी चीज को इख्तियार कर देना। ये दोनों के अंदर फर्क है। एडिक्शन के स्पेलिंग बताएं क्या है? ADDITION क्या नशा, आदत। आदत। एडिक्टर अगर आ जाए तो फिर किसको कहेंगे? डॉक्टर ए नशा डबल करने वाला। लफ्ज नहीं मौजूद है, ADDICTOR एडिक्टर कहते नशा हैं करने वाला। नशेई आदमी को, ड्रग एडिक्टर नशेई को, या नशे का आदी जो होगा। जी। एडिक्वेट के स्पेलिंग क्या होंगे? ADEQUATE एडुकेट काफी, काफी। अगर इन एडिक्वेट आ जाए तो फिर ना काफी। ना काफी। उसके बाद मुझे बताएंगे एडहेरेंस के स्पेलिंग क्या होंगे? ADHERENCE एडहेरेंस वफादार। चलो वफादार भी ठीक है, इसका मतलब साबित कदमी भी ऊपर लिखा है, ये भी ठीक है। इस्तकलाल लिखा है, वो भी ठीक है। वैसे लफ्जी मतलब मैं आपको बता देता हूँ। एडहेर का ADHER, एडहेर कहते हैं जुड़ा हुआ होना, मिला हुआ होना। एडहेर, एडहेर्ड एरिया अमूमन लफ्ज यूज किया जाता है मिले हुए इलाका जो साथ जुड़ा होता है किसी के साथ। एडहेर तो मिला होना, जुड़ा होना, जमा होना, सारे इसी के मतलब है। एडहॉक के स्पेलिंग मीनिंग क्या होंगे? ADHOC ADHOC आर्जी तौर पर। आरजी। एडजेसेंट, ADJACENT जुड़ा हुआ।
ठीक है, आगे बताएंगे मुझे अजर्नमेंट के स्पेलिंग मीनिंग क्या होंगे? ADJOURNMENT मुलतवी करना। चलें ठीक है, शाबाश। आगे ना मुझे रिजवान आप बताइए जुडिकेट के स्पेलिंग मीनिंग क्या है? जी सर, ADJUDICATE जुडिकेट हुक्म, अदालती फैसला। हाँ ठीक है, अदालत हुक्म देना, ये अदालती फैसले को कहेंगे जुडिकेट। अजुडिकेशन फैसले को कहेंगे, अजुडिकेट अदालत का हुक्म या फैसले देने को कहेंगे। जी सर। एडमिनिस्ट्रेटिवली के स्पेलिंग क्या होंगे? किसके सर? एडमिनिस्ट्रेटिवली। ADMINIS TRATIVELY एडमिनिस्ट्रेटिवली इंतजामी अमूर के मुतल्लिक। इंतजामी अमूर। एडमिनिस्ट्रेटर। ADMINISTRATOR एडमिनिस्ट्रेटर मुंतजम। एडमिसिबिलिटी। एडमिसिबिलिटी ADMISIBILITY एस डबल होगा इसके अंदर, ADMISSIBILITY। एडमिसिबिलिटी, काबिल तस्लीम। एडमोनिश। ADMONISH एडमोनिश फातिमा। एडमोनिश कहते हैं खबरदार करने, तनबीह करना, खबरदार करना। आगे बताएंगे अडल्टरेटेड। ADULTERATED मिलावट। चलो मिलाना, अमेजिश करना। आगे बताएं एडवेंट। ADVENT एडवेंट जान जोखिम में डालना। एडवेंट और लफ्ज है, एडवेंचर और लफ्ज है। मुश्किल काम। एडवेंट का मतलब होता है खिदमत होना या आना, एडवेंट। अच्छा, आना, सही। ना नहीं, ये किस इंग्लिश की किताब के अंदर है, पता नहीं, वो एडवेंट ऑफ पीस बी अपॉन हिम, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दुनिया में आना। बिफोर द एडवेंट ऑफ इस्लाम, नेक लोगों का दुनिया के अंदर आना, कुरान पाक का आना, इनके लिए लफ्ज एडवेंट का यूज किया जाता है। आगे बताएंगे एडवर्स। ADVERSE बरक्स। बरक्स या मुखलाफ। ठीक है जी सर। आगे बताएंगे मुझे एरोनॉटिक्स। AERONAUTICS इल्म हवाबाजी। अच्छा, एफिडेविट। AFFIDIVATE हलफनामा। दोबारा बताइए जरा। AFFIDIVATE डी के बाद आई नहीं आएगा, DAVIT, एफिडेविट। और स्टोक किससे डालते हैं एफिडेविट की? मैं पहले स्पेलिंग लिख दूं इधर, AFFIDAVIT, एफिडेविट। और दो तरह की स्टोक डालूंगा मैं एफिडेविट, एक तो एफ हाफ, वी भी हाफ एफिडेविट, एक एफ पूरा, टी भी पूरा, वी के ऊपर लगा के टी पूरा डालेंगे एफिडेविट। जी सर। यानी अल्फी को कहते हैं। एफिलिएट के स्पेलिंग क्या होंगे? AFFILIATE एफिलिएट, इल्हाक। हाँ, लहाक होना, ठीक है। अफिक्स्ड। AFFIXED जुड़ा हुआ। हाँ, जोड़ना, मिलाना, फिक्स्ड, फिक्स करना यानी जोड़ना, मिलाना। आगे बताएंगे मुझे अफोर मेंशन्ड। AFOREMENTIONED मज़कूरा बाला। हाँ ठीक, जिसका पहले जिक्र किया हो, मज़कूरा बाला। ठीक है, स्टोक किससे डालते हैं? अफोर मेंशन्ड। FRC डाल के नीचे एम को तोड़ देते हैं, अफोर मेंशन्ड। जी सर। दूसरी स्ट्रोक यह है कि चार डाल के ना इस तरह से नीचे एम को तोड़ देते हैं, ये भी अफोर मेंशन की स्ट्रोक है। सर। आगे बताएंगे मुझे एग्रेवेट के स्पेलिंग क्या होंगे? AGGREVATE AGGRAVATE एग्रेवेट। इकट्ठा करना, ज्यादा करना, शदीद करना। ज्यादा करना। एग्रीगेट।
AGGREGATE ये होता है ज्यादा करना, इकट्ठा करना, ये है इकट्ठा करना, वो था ज्यादा करना। एग्रावेट तेज करना। मैं बता देता हूँ, रिपीट कर रहा हूँ, एग्रेवेट जो होगा ज्यादा करना, शदीद करना होगा, और एग्रीगेट जो होगा वो इकट्ठा करना होगा, और सेग्रीगेट जो होगा वो अलहदा करना होगा। अलहदा करना, जी सर। अग्रेसिव के स्पेलिंग क्या होंगे? AGGRESIV डबल एस आएगा, अग्रेसिव। जारहाना, जारहाना यानी जालमाना। जी सर। उसके बाद मुझे बताएंगे अग्रीव के स्पेलिंग क्या होंगे? AGGRIEVE अग्रीव, कहते हैं जिस पे जुल्म हुआ हो। ग्रीफ कहते हैं तकलीफ देना, दुख पहुंचाना, सदमा पहुंचाना। अगर केला ही ग्रीफ आ जाए तो सदमे को कहेंगे, दुख को कहेंगे ग्रीफ, GRIEF ग्रीफ, और एग्रीव AGRIEVE अग्रीव। तो ग्रीफ जो होगा ये नाउन के तौर पे यूज होगा, दुख या सदमा। और अग्रीव दुख पहुंचाना या सदमा देना, इसका मतलब ये होगा। एजिटेशन, एजिटेशन AGITATION एजिटेशन, एहतजाज। एगनी, AGONY अकड़। नहीं, ये मैंने ठीक करवाया था लफ्ज आपको, शदीद तकलीफ, एगनी, सख्त तकलीफ, एगनी के अंदर यूज होता है। ये मैंने आपको ठीक करवा दिया था लफ्ज, ये ऊपर ना गलती से लिखा गया था, ये गलती से प्रिंट के ऊपर है, तो बाद में मैंने ठीक करवा दिया था। जी सर। आगे बताएंगे मुझे अपना मार भट्टी, एड, दोनों को जरा बताइए जरा मुझे। AID एड मदद देना, और AIDE नायब या मददगार। अच्छा, एड भी ना, पहला AID एड भी दोनों तरह से यूज होता है, वर्ब और नाउन दोनों तरह से। एड का मतलब इमदाद भी होता है, एड का मतलब मदद करना या मदद देना भी होता है। लेकिन जो ई वाला एड है, AIDE एड, ये है नायब वाला, मददगार वाला, मुआवन वाला। अब लिखते हैं ना स्पेशल एड ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, खसूसी मुआवन ऑफ प्राइम मिनिस्टर का जो है, तो क्या होता है, वो मुआवन के तौर पे, मददगार के तौर पे यूज होता है। एसल, AISLE एसल हासिल करना। नहीं, एसल कहते हैं दरमियानी रास्ते को। आगे बताएंगे मुझे एलियनेशन, अलाइनेशन भी बोलते हैं इसको। ALIENATION मुंतकली। अलाइनमेंट, ALIGNMENT अलाइनमेंट, कतार या साफ बंदी कह लें, सीध कह लें, कतार कह लें, कतार बंदी कह लें। आगे बताएंगे मुझे अलज, ALLEGE अलज इल्जाम लगाना। अच्छा, आगे बताएं मुझे एलिविएट, ALLEVIATE एलिविएट कम करना। कम करना। अलाइंस, ALLIANCE अलायंस इत्तेहाद। चलें ठीक हो गया। आगे मुझे बताएंगे अपना नवाज भट्टी, कुछ बताया आपने? जी सर, जी सर, जी सर। मैंने कहा पहले बताया तो कुछ नहीं ना अभी। नहीं सर। लोकेशन के बताएं फिर। ALLOCATE एलोकेशन, ALLOCATION एलोकेशन, नामजदगी सर। ठीक है। उसके बाद मुझे बताएंगे अलाउंस के स्पेलिंग क्या होंगे? ALLOWANCE अलाउंस वजीफा सर। ठीक है, वजीफा भी ठीक है। और एल्यूजन, ALLUSION एल्यूजन सर। इल्जाम लगाना सर। इशारा, इशारा। रमज भी ठीक है। अलाई, ALLY सर। साथी, ठीक है, साथी। इसी से अलाइंस है,
इत्तेहाद वाला। जी सर। अलाई से अलाइड, फिर अलाइंस, इसी के अल्फाज ये। अलमाइटी, जी ALMIGHT कादर मुतलक। कादर मतलब। एल्टर, ALTER अल्टर। हम्म, अख्तियार सर, अलर्ट बदलना, सर, क्या होता है? बदलना बदलना। बदलना। एल्टरकेशन, ALTERCATION तब्दील करना। नहीं, झगड़ा या लड़ाई के अंदर यूज, अल्टरकेशन लड़ाई के अंदर यूज होता है। अल्टरकेशन। झगड़ा या बहस या लड़ाई। तो उसके बाद बताएंगे मुझे अल्टरनेट। ALTERNATE अल्टरनेट। हाँ, ये क्या है? मुतबादल। ये है मुतबादल या अदल बदल करना। एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड एल्टी ALT। जी सर। एल्टीट्यूड, ALTITUDE अल्टीट्यूड। सर मौजूआ होता है इसका। ऊंचाई, बुलंदी। वजाहत वजाहत बुलंदी। अच्छा, अमलगामेशन, AMALGATION अमलगामेशन। क्या होता है ये? अमलगामेशन मतलब बोल। अमलगामेट का मतलब होता है जोड़ना या मिलाना। अमलगामेशन जी वर्ड सर। के अंदर यूज होगा। स्ट्रोक शॉर्ट फॉर्म है ये। MLC पहले, फिर M, फिर शन। अमलगामेशन। जी। एम्बेसडर के स्पेलिंग क्या होंगे? AMBASSODAR SSADOR, एम्बेसडर। AMBASSADOR, SSDOR सफीर को कहते हैं। एम्बिग्यूटीज, AMBIGUITY। चलो एम्बिग्यूटी के बता रहे हैं, क्या होता है ये? सर ये मशकूक, वजाहत है। मशकूक, मशकूक, गैर शक वाजिब, शुबा मशकूक, हाँ, गैर वाजिब। वगैरह वगैरह इसके अंदर आता है। आगे मुझे बताएंगे स्पेलिंग। फुरकान बताओगे यार स्पेलिंग एम्बिशन के? सही किसके? एम्बिशन। एम्बिशन AMBITION बुलंद करना। चलो, एम्बिशन बुलंद करना तो नहीं आएगा। अगर आप कह दें कि बुलंद नजरी तो बात समझ में आ जाएगी। अगर साबित कदमी कह दें तो फिर भी समझ में आ जाएगी। एम्बिशियसली, AMBITIOUSLY बुलंद नजरी से। चलो ठीक हो गया। एम्बुलेंस, AMBULANCE एम्बुलेंस एम्बुलेंस। चलो एम्बुलेंस ही सही। एम्बश, AMBUSH क्या होता है ये? घात लगाने का अमल, दाव लगाने का अमल, लुक छुप करना, ये होता है एम्बश। अमिलियोरेट, AMELIORATE क्या होता है ये? बेहतर करना। बेहतर करना, बेहतर बनाना, ठीक है। आगे बताएं। अमेनिटी, AMENITY क्या होता है ये? नरमी, क्या मतलब है? नरमी, अमेनिटी। नरमी। एमिकेबल, एमकेबल AMICABLE क्या होता है? दोस्ताना। एमिकेबली का मतलब क्या होगा फिर? दोस्ताना तरीके से या दोस्तों की तरह। जी सर। अमिडस्ट, AMIDST दरमियान में। पेज तो नहीं टर्न कर रहा, आवाज आ रही है, पेज पीछे तो नहीं देख रहा कहीं पे? नहीं सर जी। अच्छा, आवाज आ रही, पेज टर्न होने की मुझे। अच्छा, एम्पल क्या ये बताया? मिस्ट का मतलब दरमियान में है। दरमियान में। एम्पल टाइम, AMPLETIME क्या होता है ये? मीनिंग नहीं आ रहा। मीनिंग तो याद करने थे, मीनिंग तो सुनने थे यार आज ना। एम्पल टाइम, काफी वक्त। एम्पल कितने ज्यादा। सर हाँ जी,
सर मुझे इजाजत चाहिए थी। जी जी बिल्कुल जाएं, आप ना लेट हो रहे हैं, मैं देख रहा हूँ आज। जी तो जी बाकी कल शुक्रिया पे सर। ना रख लें, कल बाकी कल सुन लेते हैं जरा। जी ठीक है सर। हाँ कल पे रख लेते हैं, और दोस्तों ने भी जाना होगा, दफ्तर में काम करना होगा उन्होंने भी, ठीक है। जी सर। तो वैसे भी दूसरी क्लास भी आगे से शुरू होने वाली है, चौथी क्लास जो है। जी सर। हाँ जी। जी सर, तो बाकी तो बहुत बाकी जो रह गया ना, कल अच्छी तरह इसको याद कर गए, हम आगे से फिर शुरू करेंगे। कल लॉन्ग एंड पे करेंगे, लॉन्ग एंड भी रह गया, इसी तरह ना कल कोशिश करेंगे सारे काम को। जी ठीक 8 सर। से ठीक होगा। अल्लाह हाफिज़। शुक्रिया अल्लाह सर। हाफिज़ सर। अल्लाह हाफिज़।